Good morning, student. Good morning, sir. Today Today, we shall discuss about singular and plural. Singular and plural. Singular and plural. सिंगुलर एंड प्लूरल, इसको हम ऐसे लिखते हैं। सो लेट अस डिस्कस। आओ हम समझे कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। बेटा, सिंगुलर का मतलब है सिंगल चीज, सिंगल थिंग, एक चीज। जैसे here a duster in my hand, here a duster in my hand. Please tell me, is it singular or plural? कि मेरे हाथ में डस्टर है, ये बताओ मुझे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर, वेरी सिंगल चीज डस्टर है। मैंने कहा इट इज अ डस्टर, इट इज अ But I said it is a duster. It is a duster. So duster is single. Duster is one. Duster is one. Duster is single. So single thing is singular. Single thing is singular. Now I have two markers. I have two markers. These are not single. These are two. These are two markers. M-A-R-K-E-R-S. Markers. These are two markers. So please tell me, are they singular or plural? मुझे बताएं कि क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। बताओ बच्चों, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। These are plural because these are two. These are two. तो two कोई चीज हो, यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है, एक से मोर देन वन, इसको हम कहते हैं मोर देन वन। कोई वस्तु जो मोर देन वन है, अब ये मोर देन वन है, मोर देन वन, मोर देन वन, ये वन है, अब ये मोर देन वन। तो मोर देन वन है कोई वस्तु, तो हम उसको प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लूरल। और कोई वस्तु अगर सिंगल है, वन है, सिंगल है या वन है, एक ही बात है। सिंगल और वन एक ही बात है, तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। जैसे here is a chair, here is a chair. Now please tell me, is it singular or plural? Singular. It is a singular chair. It is a singular chair. It is a singular chair. Now I have the bottle of glue in my hand. Now I have the bottle of glue in my hand. So please tell me, is it singular or plural? Singular. Very good. The glue is singular. G-L-U-E. Glue. Glue is singular. Now I have some books in my hand, two books. So please tell me, these books are singular or plural? Singular or plural? बताओ। Plural. These books
मैंने कहा बुक्स, BOOKS, BOOKS, बुक्स। तो बुक्स होगी तो प्लूरल, बुक्स मतलब S। अब एक बात और देखिए, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने बेटा, सिंगुलर जो चीज होती है उसके पीछे S नहीं आता। S कहाँ आता है? S आता है प्लूरल चीज के पीछे। जैसे मार्कर्स प्लूरल थे, मार्कर्स ऐसा है पीछे। बुक्स प्लूरल थी तो बुक्स के पीछे ऐसा है ना। प्लूरल थिंग्स के पीछे एस आता है और सिंगुलर चीज के पीछे एस नहीं आता। नाउ I am going to some more examples. Now tell me, these are chalks. Chalks. क्योंकि टू है ना, चौक्स कहेंगे। अगर एक हो तो चौक कहते हैं। एक है चौक और दो है तो चौक्स। अब बताओ ये चौक्स जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? वेरी, चौक्स जो है वो प्लूरल है। मीन्स चौक्स आर प्लूरल because they are two. So more than one thing are always plural. So the chalks are plural. Now I am going to give some more example. The copy has so many pages. This copy has so many pages. बहुत सारे पेज हैं। इस कॉपी में बहुत सारे पेज हैं। This copy has so many pages. Now tell me, the pages are singular or plural? Plural. The pages are plural. Pages. Pages are plural. Now here is a dustbin. Here is a dustbin. We can say this is a dustbin. It is a dustbin. ऐसे कह सकते हैं। Now tell me, is it singular or plural? Singular. Very good. Clapping. The dustbin is singular. Here are some pictures. There are number of pictures. चुटकी, छोटा भीम, मोटू पतलू, अपने स्कूल का पोस्टर है। There are so many pictures. तो now tell me, pictures are singular or plural? बताओ, tell me, pictures are singular or plural? Pictures are plural. Pictures are plural. Pictures, मैंने क्या कहा? I said pictures. What I have said? I have said pictures. Pictures word is a plural word. ठीक है। सो आपको बात पता है बेटा कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल? व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल? पता लग गया? कोई चीज सिंगल है, सिंगल का मतलब एक, सिंगल का मतलब है एक, तो सिंगुलर है। सिंगल है तो सिंगुलर है,
और कोई चीज बहुत सारी है, जैसे यहां पर बहुत सारी कुर्सियां हैं, छोटी कुर्सियां, बच्चों की कुर्सियां, चेयर्स, क्या है? चेयर्स। तो बताओ चेयर्स जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? बताओ चेयर्स प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल। क्यों? अरे मैंने उसी खाने में तो लिखी है, मैंने प्लूरल वाले बॉक्स में लिखी है। सो द चेयर्स फॉर किड्स, किड्स माने बच्चे, द चेयर्स फॉर किड्स आर प्लूरल, है ना? एंड इज दिस फैन सिंगुलर और प्लूरल? दिस फैन Singular. दिस फैन बताओ, इज दिस फैन सिंगुलर और प्लूरल? Singular. सिंगुलर। दिस फैन इज सिंगुलर। Pratik have said, sir, the fan is singular because it is only one. It is only one. So one thing is singular. One thing is always singular, है ना? We can call single thing singular. We can call we call single thing singular, and so many things, बहुत सारी चीजें, we call them plural. We call them plural. Understand? So now I erase all this. Erase कर दूं? Erase all this. Now we shall learn the use of was and were. Now we shall learn the use of was and were. The use of was and were. Was और were का प्रयोग. Now we shall learn का मतलब सीखना, learn का मतलब है सीखना. Now we shall learn, अब हम सीखेंगे use of was and were. Was और were का प्रयोग. was और were का प्रयोग. अब देखो बेटा, अगर कोई सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो हम उसके साथ वॉज लगाते हैं. क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं उसके साथ हम? वॉज. और अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है, कैसा होता है? तो उसके साथ हम वर लगाते हैं. क्या लगाते हैं बेटा? वर. समझे मेरी बात को? मैं इसको आपको इंग्लिश में समझा रहा हूं. इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, we shall use was. If a subject is singular, we shall use was. And if a subject is plural, if the subject is plural, we shall use were. We shall use were. मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो was, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो were. समझे मेरी बात को? जैसे अब बताओ, मैंने एक वर्ड लिखा बुक्स. मैंने एक वर्ड लिखा बुक्स. पहले तो मुझे ये बताओ कि जो बुक्स वर्ड है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? वेरी गुड, क्लैपिंग. बुक्स वर्ड इज प्लूरल. अब मुझे ये बताएं, प्लूरल है बुक्स, तो इसके साथ वॉज आएगा या वर आएगा? भाई आपने बताया मेरे को. यू टोल्ड मी सर बुक्स इज अ प्लूरल वर्ड. बुक्स इज अ प्लूरल वर्ड. अब मुझे ये बताओ आप कि प्लूरल है तो इसके साथ वाज आएगा या वर आएगा? वर. बहुत बढ़िया. चंचल ने बताया, चंचल हैज सेड दैट सर we shall use were with books. We shall use were with books. We shall use were with books. Books के साथ हम
वर लगाएंगे, क्योंकि बुक्स क्या है बेटा, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। अब आपकी में है ना जो बुक्स है ना, उससे जो एक्सरसाइज है वो करवाते हैं, ठीक है ना। नाउ वी शैल डू एक्सरसाइज फ्रॉम बुक्स। इसको मत खोलो। फर्स्ट वन इज fill in was or were. First one is it very hot yesterday. First one sentence है it blank space very hot yesterday. और लास्ट में क्या था बेटा, फुल स्टॉप। इट वेरी हॉट यस्टरडे। अब जो इट है बेटा, इट, ये जो इट वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होता है बेटा, सिंगुलर। तो बताओ सिंगुलर के अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट कोई भी चीज सिंगुलर है तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे? Was. Very good. If a thing is singular, we use was. If a thing is singular, we will use was. Second sentence है there blank space no wine in the Jula Sunday. There blank space no wine in the Jew yesterday. So there no wine. ये जो no wine वर्ड है ना, no wine, इसका मतलब है wine के पीछे ऐसा लगा हुआ है नहीं, there is no s after wine. wine के बाद जो है कोई s नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लाइन सिंगुलर है ना। कैसा लाइन बेटा, सिंगुलर। सो हियर द लाइन इज सिंगुलर, लाइन इज सिंगुलर। तो बताओ मुझे कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे? क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, वॉज या वर? नो, हियर वी शैल यूज वॉज। हियर we shall use was because the line is a singular word. The line is a singular word. Next है there blank space 5 student। जब ध्यान से देखना बेटा, 5 student, 5 student in the class. Now look here. Now look here बेटा, यहाँ देखो बेटा, there blank space 5 student in the class. How many student? 5 student. How many student? मैंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट, इसका मतलब है कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं। तो कितने विद्यार्थी बेटा, 5 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 5। सो 5। स्टूडेंट क्या नाम है किसका? इसका चंचल। चंचल। कोई ऐसा बच्चा जो आज काम लग गया स्कूल में, का पीछे कोई किसी का इससे किसे लगे चंचल? ये प्रतिक्रिया है। हाँ, सो देखो देयर ब्लैंक स्पेस 5 स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे जो 5 स्टूडेंट है वो प्लूरल है। क्या है वो, प्लूरल। तो बताओ बच्चों, प्लूरल है तो हम वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे? नहीं बेटा, वर। प्लूरल है
तो हम यहाँ पे वर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं है, 5 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? हाउ मेनी? 5। हाउ मेनी? हाउ मेनी का मतलब मैं पूछ रहा हूँ कितने हैं, तो आप कहोगे 5। हाउ मेनी? 5। हाउ मेनी? कितने हैं? हाउ मेनी? 5। देयर आर 5 स्टूडेंट्स। देयर आर 5 स्टूडेंट। 5 स्टूडेंट है तो ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम वर लगाते हैं। हमने वर लगा दिया। अब नंबर 4 है यू एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। यू ब्लैंक स्पेस एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यू एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। अब एक बात सुनो बेटा, यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम। अब तुम एक हो या कई हो? तुम तो एक ही हो ना। देखो बेटा, यू जो है ना, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू जो है वो चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, उसके पीछे हम, उसके बाद हम हमेशा वर ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर। किसके पीछे बेटा? यू के पीछे। अब यू वेदर इट इज सिंगुलर और वेदर इट इज प्लूरल, वेदर इट इज सिंगुलर और वेदर इट इज प्लूरल, मतलब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ वर ही आता है। वी शैल यूज वर आफ्टर यू। ठीक है। अब एक बार देखो, हम इसकी हिंदी करते हैं सभी की। इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। कल बहुत गर्मी थी। कल बहुत, हॉट का मतलब है गर्मी। कल बहुत गर्मी थी। अब अगला देखो, देयर वॉज नो लायन इन द जू यस्टरडे। कल जू में कोई भी शेर नहीं था। तीसरा है, देयर वॉज 5 स्टूडेंट इन द क्लास। देयर वॉज नहीं बेटा, देयर वर 5 स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में 5 स्टूडेंट थे। अगला है, यू वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास।